everyone, how are you guys? This is Dr. Wagma and welcome to Dermatology with me Wagma. Sorry, थोड़ा सा बीच में लिंक का प्रॉब्लम हुआ था and I had calls to start over again because बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन नहीं किया होगा, तो I'm gonna wait again for everyone to join again because I'm not gonna start all over again, ठीक है? So I'll just wait थोड़ा सा and then we'll talk about it. It's Sunday. I hope you guys का Sunday अच्छा जा रहा होगा. आई डोंट नो आप लोग संडे को क्या करते हो. मैं आई ट्राई टू रेस्ट संडे को ज़्यादा. आई ट्राई टू कंप्लीट मेरा नींद, बट बहुत सारे लोग वेरी लाइट स्लीपर्स होते हैं. अगर मेरी नींद टूट जाए तो फिर मुझे नींद नहीं आती. आई थिंक इट्स विद सो मेनी पीपल. विद मी इट्स अ बिग प्रॉब्लम. एंड हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम. आई एम ट्राइंग टू रीड ऑल्सो. अगर मैंने डिसाइड किया है टू टॉक अबाउट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस इसलिए बिकॉज मुझे बहुत सारे क्यूरीज आए, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. एंड आई बीन लास्ट वीक में आई थिंक 3-4 पेशेंट्स मैंने इसी तरह देखे हैं कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के. इनफैक्ट इस सुबह भी आई टॉक्ड अबाउट पीडियाट्रिक्स का कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस. सो आई डू वांट टू टॉक अबाउट इट. एंड इट्स द बिगेस्ट, आई थिंक सबसे कॉमन प्रॉब्लम ही होता है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कि इट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम. व्हाट इज इट? नो, हर किसी ने लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा. ट्रस्ट में, आपने कोई प्रोडक्ट लिया, यू बॉट अ प्रोडक्ट और you're using something, you're using a detergent or a new skincare product and एकदम से आपको रिएक्शन हो जाता है. So you see a rash, irritation और itchy rash होता है. So that's contact dermatitis. ठीक है, I'm sure हर किसी को लाइफ में एक दफ़ा ऐसे ज़रूर हुआ होगा. I have a problem. I get this thing contact dermatitis with latex के gloves. So the minute I wear it, it's like, oh my god, I'll start, खारिश शुरू हो जाती है and I get this hive things on my hand. So I use vinyl gloves. ठीक है. So now contact dermatitis contagious नहीं है. It's not life threatening, but it can be very very. आप hardly उसके severe forms देखते हो. But it can be very unpleasant because of that itching. जब तक itching है, it's unpleasant. So that's the problem. Sometimes I had this patient who talked about it. She was wearing a ring. ठीक है, उसको कभी उस रिंग से नहीं हुआ and she got swelling. Pregnant थी तो she got a swelling in her hand और fingers में. And then उसने बर्तन बच्चों के फीडर वगैरह धोए हो या पानी में ज़्यादा हाथ डाला होगा, तो she got allergic reaction to उसी का रिंग, which is really funny. ऐसे होता है seriously. My sister is allergic to gold. ठीक है, whenever she wear gold she start acting up, she get a reaction हो जाता है उसको. तो contact dermatitis. Now there are 3 forms of it. ठीक है. The most uncommon वाला is photo contact dermatitis. It happens अगर आपने कोई स्किन केयर प्रोडक्ट लगाई है और इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, it get रिएक्शन करता है after getting exposed to sun. ठीक है. So irritation start, which is very very uncommon, but it is there because it happens. Then you have allergic contact dermatitis. अब allergic contact dermatitis में क्या करता है, आप your skin started acting up like that due to allergic reaction. You get an allergic reaction because your body release chemical, inflammatory chemical due to this response. And that's what we call it, allergic contact dermatitis, which is, the name says it all. ठीक है. And it's just, जैसे मैंने बोला, you react to gold jewelry यार, like jewelry को react करो, it's just not fair, but you do react it and you call it allergic contact dermatitis to gold, to nickel. ठीक है. You do आप hiking पे जाते हो and you start all that thing started acting up. आपको खारिश शुरू हो जाती है, probably कोई poison ivy due to plants, you get that reaction. Then you have the most common wala contact dermatitis. That's the most common one, and it's due to when you get in contact to the toxic material. Now it can be to a skin product, नया कोई product लिया होगा, you react to that. You can react to bleaches, ये जो normal चीज़ है यार, like जिससे आप drainage खोलते हो, drainage opener, your bleach, your detergent, you start reacting to that. I'm allergic to dust. When I see, मुझे पता चल जाता है अगर किसी कमरे में बहुत डस्ट है तो I start acting up all. And how did I come to know about that? I took a patch test because I didn't understand कि किस चीज़ को हो रहा है.
सो व्हेन आई टुक अ पैच टेस्ट माय एलर्जन वाज डस्ट, ठीक है, एंड इट आप पाकिस्तान में कर सकते हो, सो मेनी हॉस्पिटल डज इट, आई डिड इट विद आगा खान, ठीक है. So now it depend what are you, and then you should take care of it. You know your problem, trust me. अगर आपको हो और आपको exactly पता होता है कि आपने अभी अभी क्या यूज़ करा and उससे आप रिएक्ट कर रहे हो, जैसे that girl use concealer, उसको उससे हो रहा है. I think today वाला was due to खारा पानी, you know खारा पानी के it's उसका जो उसमें कुछ होगा जिससे वो irritant हो रहा था skin, and it happened. And this girl, I had this patient, I think yesterday, skin was all acting up, she had contact dermatitis to a very common thing, yeah, you know ये जो जॉर्जेटी कपड़ा नहीं होता सूती वाला, और she reacts to that every time she wears it, she gets swelling and she see itchy red rash and it swells up also in her private parts, ठीक है. तो these things happen. So if you see अगर आपको allergic reaction, आपको how do you see the symptoms? Okay, so you see, you know, you see dry flaky red skin, there you go. Sometimes you इतना थोड़ा severe होता है that you see blister and उससे oozing हो रही होती है, ठीक है. You see that it's like darken हो जाती है and it's like leathery to touch, ठीक है. the allergic वाले में ना तो वो जो sores है वो खुल जाते हैं और उसमें से oozing हो रही थी और येलो येलो सा क्रस्ट बना होता है. the blisters होते हैं जो ooze कर रहे होते हैं, ठीक है. and it's just that red patchy darken, या तो flaky होगी या darken हो जाएगी. so when you see all of that, it means you got one of it, either it's allergic or it's contact, but then we do it on the symptoms also कि contact के symptoms as we talked, and allergic one जो होंगे वो ooze करते हैं and they're more severe sores की तरह. contact वालों का dry होता है, flaky हो जाता है and it's very very itchy, extreme itchiness होती है, and you're sensitive to light also, to sunlight, you're very very sensitive to that, ठीक है. so of you just do that. अगर देखो it's very common है ना, अगर अपना the problem जिस substance से आपको हुआ हो, अगर if you get rid of it, it will all go better, ठीक है. but some people they react very severely, ठीक है, and then you need the doctor. then stop scratching. अगर आपको हुआ है तो आप उसको जितना scratch करोगे आप अपने skin को injure कर रहे हो, ठीक है. अगर आप उसको injure करोगे तो फिर infection होगा, फिर antibiotics चाहिए होंगे. so I will अच्छा उर्दू में बात करूँ यार, ठीक है. मैं ट्राई तो बहुत करती हूँ उर्दू में, बट कोई रिक्वेस्ट करता है पश्तो में बात करो, ठीक है. एंड देन पता है सीरियसली इट्स सो हार्ड टू स्विच इन बिटवीन उर्दू में, पश्तो में, इंग्लिश में, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट दैट आई विल. majority of Pakistani national is not familiar. I am so sorry yaar, guys I'm really sorry. I will talk in Urdu. मैं बहुत कोशिश करती हूँ उर्दू में, but my mother tongue is पश्तो, but I try कि मैं सब में बात कर सकती हूँ, ठीक है. ओके चले हम उर्दू में बात करेंगे. I'll try my level best कि हम उर्दू में बात करें, ठीक है. ओके सो where were we? मोस्टली सबको पता होता है कि आपका आपके रैश का रीज़न क्या होता है, ठीक है. सो यू नो जैसे आई सेड दैट किसी ने कंसीलर लगाया उसको रिएक्ट कर रहा है, ठीक है. मुझे मेरा प्रॉब्लम पता है, जब मैं लेटेक्स ग्लव्स पहनती हूँ तो आई गेट दिस, सो आई गॉट एलर्जिक रिएक्शन. सो आई नो मेरा प्रॉब्लम, ठीक है ना. जस्ट आई सेड कि आई हैव अ सिवियर एलर्जी टू डस्ट. सो अगर मुझे ऐसी हाइव्स की तरह रिएक्शन शुरू हो जाता है, जैसे ऐसे फोड़े फोड़े बन भी जाते हैं, इट्स हाइव रिएक्शन, सो इट मीन यू आर गेटिंग दैट, ठीक है. यू विल नो योर कॉज. एंड इफ यू अगर आपको पता नहीं चल रहा तो आप टेस्ट करा सकते हो एलर्जन का, आपको एग्जैक्टली बता देंगे कि आपको किससे एलर्जन, आप फिर उसको अवॉइड मारे. कभी कभी ना आप हाइक पे जाते हो, आप कराची में तो हाइकिंग नहीं होगी, बट जो लोग ना इस्लामाबाद में रहते हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड पीपल डू गो फॉर हाइकिंग, बट देन प्लांट्स ही प्लांट्स है, ठीक है. सो यू कैन गेट एलर्जिक रिएक्शन टू प्लांट्स ऑल्सो, यू नेवर नो, होता है. सो बहुत सारे लोग जाते हैं एंड अब खुद सोचो अगर किसी को हुआ, अगर आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वो आपसे हिस्ट्री पूछेंगे. जैसे यू नो लाइक डॉक्टर आपसे हिस्ट्री पूछेगा ना कि क्या हुआ जब रैश शुरू हुआ, आपने कोई चीज़ चेंज की है, कोई नया चीज़ यूज़ करा है, आप क्या डिटर्जेंट चेंज किया है, क्या आपने अपना नया स्किन प्रोडक्ट लिया है. सो आपने कुछ भी किया होगा जिसकी वजह से आपकी बॉडी एक्ट अप करती है, ठीक है.
सो आप अगर अच्छी हिस्ट्री लेते हो तो आपका डायग्नोसिस पिन पॉइंट हो सकता है एंड यू कैन गेट जल्दी रिलीव ऑल्सो, ठीक है। बट अगेन यू आर खुद का अच्छा जज एंड आप अपना डायग्नोसिस खुद बता सकते हो डॉक्टर को, एंड ट्रस्ट मी इट हेल्प्स, बहुत हेल्प मिलती है। where so the thing is you know what, I'll tell you what, अगर आप कोई नई चीज़ लो ना, सबसे बेहतर ये होता है आप उसको अवॉइड करो। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का आप कैसे अवॉइड कर सकते हो? अगर आपको नया स्किन केयर प्रोडक्ट चाहिए ना, आप कोई नया प्रोडक्ट ट्राई करो तो आप अपने फोरआर्म पे लगाएं, उसको छोड़ दें, धोए मत, डोंट रब मत करें, रिमूव मत करें उसको, 48-96 आवर्स छोड़ दें। अगर उसने रिएक्ट किया तो वो प्रोडक्ट आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो कोई भी नई चीज यूज करने से पहले आप टेस्ट करो यार, यू शुड अपने हाथ पे लगा के देख लो, फोरआर्म पे छोड़ दो 48-96 आवर्स, अगर आप रिएक्ट करोगे तो दैट इज आपके लिए नहीं है, और इस तरह आप कर सकते हो। सो कोई चीज लेने से पहले, इसलिए लोग बोलते हैं पैच टेस्ट ट्राई कर लो। यहाँ तो लोग उस पर भी नहीं करते हैं, हेयर ड्रेसर्स के पास भी पता है, वहाँ बायर ऑलवेज पैच टेस्ट करते हैं कि आप डाई को तो एलर्जिक नहीं हो। यहाँ पे कोई नहीं, वहाँ पे बहुत पैच टेस्ट बहुत सारे हेयर ड्रेसर करते हैं, दे गिव यू स्किन के ऊपर पैच टेस्ट ऑन योर हेयर कि आपको रिएक्शन ना हो जाए। आपको पता है इतनी लेस कॉमन चीज़ें होती है जिससे आपको कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता है, जैसे मैंने कहा डिटर्जेंट यार, ड्रेन ओपनर, ठीक है, ये तो बहुत कॉमन चीज़ें और आप उससे रिएक्ट करते हो। और देयर पीपल जो लेस इरिटेंट चीज़ों को भी रिएक्ट करते हैं, लाइक सोप्स, आपने सोप चेंज किया, आप रिएक्ट कर रहे हो। बहुत सारे लोग पानी, यार सम लोग, बहुत सारे लोग पानी को भी रिएक्ट करते हैं, इसलिए बिकॉज आपका एक्सपोजर ज़्यादा है, आपका पानी वाला काम कर रहे हो, ठीक है, उसकी वजह से ना आप रिएक्ट कर रहे हो। जैसे हेयर ड्रेसर है, बिकॉज उनका काम पानी का है, बार टेंडर्स हैं जो फिशरी में काम करते हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स है, बिकॉज उनका काम पानी का है, तो उनके मोस्टली हाथों पे you will see that contact dermatitis on their hands because they have, उनके हाथ मोस्टली उसमें पड़े होते, पानी में यूज होते हैं, that's why it happens. The rest is it's just a very common thing, but आप खुद ही उसको सही कर सकते हो। अगर आप आपको पता चल गया इरिटेंट क्या है और अभी आपको माइल्ड था, आप छोड़ दो प्लीज, अपने स्किन को स्क्रैच मत करो, एज आई सेड उससे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जस्ट लीव द इरिटेंट, छोड़ दे, जिससे आपको ये प्रॉब्लम हुई होगी, इट विल गेट बेटर इटसेल्फ। और अगर नहीं हो रहा देन यू रियली नीड टू गो सी योर डॉक्टर, ठीक है। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, वी गिव यू एंटी-एच का लोशन लाइक कैलेमाइन लोशन, और वी हैव टू प्रिस्क्राइब हाइड्रोकार्टिसोन, इट्स जस्ट नॉट द पोटेंट वाला, माइल्ड वाला, टू फिक्स इट फॉर यू, ठीक है। बट सम पीपल विल लीव, मे बी दे आर मोर इन्फेक्टेड, उनको ज़्यादा सिवियर है, तो दे नीड पोटेंट वाला स्टेरॉइड, ठीक है। But for that you have to go to a doctor to give you that. And the rest, अगर आप घर पे हो तो आप कैलेमाइन लोशन यूज़ कर लो। अगर आपको बहुत इचिंग हो रही है एंड इसमें सबसे ज़्यादा इचिंग ही प्रॉब्लम करता है, इट कैन बी वेरी अनप्लेजेंट, तो प्लीज़ फिर आप वो खा सकते हो एंटी एलर्जी, जिससे वजह से आपके एंटी एलर्जी आपकी वो इट गिव्स यू गुड रिस्पॉन्स एंड यू डोंट इच अ लॉट, तो यू कैन टेक एंटी एलर्जी टैबलेट्स लाइक depend what's your age and who कौन ले रहा है। I will prefer loratadine non-sedative, but you can also take Softin and all of that। कोई भी anti allergy you can take 10 mg once a day, so it will stop your itching at least, and आप ज़्यादा itch नहीं करोगे अगर आप स्किन सर्फेस को नहीं धोलोगे। अगर आप पेट्रोलियम भी ट्राई कर सकते हो, अगर आपको वो डर्मेटाइटिस हो गया है तो जो नॉर्मल वो नहीं होता पेट्रोलियम जेल, यू कैन यूज इट ऑन दैट, बिकॉज वो एक अमेजिंग बैरियर है जो पानी को ना बाहर जाने देता है ना अंदर, हाइड्रेशन मेंटेन करता है। अगर स्किन हम इसमें वही पॉइंट ही यही है कि आप हाइड्रेशन मेंटेन रख लो, स्किन को ड्राई ना होने दो। सो आपके पास घर में पेट्रोलियम सबके पास होता है, अगर आप उस पर लगा के देख लो, इट विल गेट बेटर विद दैट ऑल्सो। सो इट डिपेंड्स आपको किस वजह से हो रहा है। एज आई टॉक्ड अबाउट इट कि माई सिस्टर, इट्स जस्ट कॉमन चीज़ें लाइफ में जिससे आपको रिएक्ट हो रहा है। सो इफ यू रिएक्टिंग, जस्ट यू नो व्हाट आपने किया, क्या होगा, आपको एग्जैक्टली पता होता है कि क्या चीज़ चेंज की है जिससे आपको हो रहा है। ना द फनी थिंग इज यार, आप लोगों को देखते हो, इट्स सो सैड कि उनको ना लेदर की चीज़ों से, आप मोस्टली जूतों में यही बना होता है, लेदर के बैग्स, लेदर के जूते, है ना, इमेजिन उन लोगों को उससे भी होता है एंड दे रियली उनका ख़राब हो जाता है।
सो बिकॉज मैंने पेशेंट देखा था जिसको लेदर से एलर्जी थी। तो इमेजिन आप चप्पल भी प्लास्टिक के पहनते हो ऊपर, बिकॉज हर चीज़ में लेदर 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 लेदर। आप हैंडबैग भी नहीं यूज़ कर सकते हो, उसमें भी लेदर होता है, तो यू रिएक्ट टू दैट। तो फिर आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है, बिकॉज आपको अपना कॉज पता होता है कि आप किस चीज़ को रिएक्ट करते हो, एंड फिर लाइफ डिफिकल्ट हो जाती है। तो अपनी लाइफ को आसान करने के लिए यू हैव टू अपना वो जो इरिटेंट है आपको वो छोड़ना पड़ता है, बिकॉज अगर आप वही करोगे तो बार बार होगा। माई सिस्टर जैसे उनको ज्वेलरी से एलर्जी है, गोल्ड से, तो शी रियली रिएक्टेड, बट शादी थी तो पढ़ना तो पड़ता है, एंड शी रियली अवॉइड्स इट। उसके बाद शी टेक्स मेडिसिन फॉर इट। मैंने पेशेंट्स देखे हैं जिनको मेकअप से एलर्जी है, मतलब कोई भी चीज़। सो जब भी आप कोई प्रोडक्ट लो तो उसके पीछे देखो हाइपो एलर्जिक लिखा होता है, यू नो, बाय सच ऐसे प्रोडक्ट लीजिए। एंड वो भी देखिए जो अनसेंटेड हो। इमेजिन सो मेनी पीपल रिएक्ट टू परफ्यूम्स ऑल्सो, सो उसमें कोई ना कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा जिसकी वजह से आप रिएक्ट करते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज, एज आई सेड यार, अगर कोई भी चीज़ लेनी है आप अपने पे पहले टेस्ट कर लो, पैच टेस्ट कर लें आप, ठीक है। पुट इट ऑन योर फोर आर्म और उसको 96 और 48 आवर्स 96 तक छोड़ दीजिए, उसको ना धोएं, लेट इट बी देयर। अगर चले इमेजिन आपको किसी इरिटेंट से वो हो गया है रिएक्शन, आपको लगता है आपको हो रहा है, जस्ट क्लीन इट नाइसली वार्म वाटर के साथ, माइल्ड सोप के साथ उसको साफ कर दे, ठीक है। पेट्रोलियम लगा ले, अगर कुछ भी नहीं तो पेट्रोलियम जेली लगा दे, एंड देन देख लें तो सीरियसली सही हो जाएगा। एंड खुद ही सोचे कौन सा इरिटेंट था जिससे आपको रिएक्ट हुआ, एंड देन लीव इट, खुद ही सही हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा तो फिर यू हैव टू गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट ना टू फिक्स इट फॉर यू। बट जैसे आई सेड, यू कैन यूज काउंटर पे पाकिस्तान में तो आसानी से मिलता है, यू कैन गेट बेटनेविट है, फ्यूसिडिन एच है, फ्यूसिडिन है, यू कैन यूज दीज टू फिक्स द प्रॉब्लम। एंड द बेस्ट पार्ट इज टू अवॉइड मारे, एंड अवॉइड मारने का तरीका यही है कि कोई भी चीज़ लेने से पहले प्लीज़ देख लीजिए। एंड कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस बहुत नॉर्मल है, एंड इट्स रियली फनी, इतने सारे लोगों को ना बहुत छोटी छोटी चीज़ों से हो जाता है। एंड आई एम श्योर लाइफ में किसी ना किसी 90% लोगों को लाइफ में हुआ ही होगा, एक दफ़ा तो आपने किसी चीज़ को रिएक्ट ज़रूर करा होगा। सो ट्राई टू वो करें, टेक केयर, लाइक कोई भी चीज़ लेने से पहले आप यूर वेस्टिंग मनी, आपने कोई चीज़ ले ली और फिर आप उसको रिएक्ट भी कर रहे हो, फिर आप उसको वापस भी नहीं कर सकते हो। सो जो अच्छे प्रोडक्ट होते हैं, जो कंपनीज होती है, उनके पास हमेशा सैम्पल्स पड़े होते हैं, आप सिर्फ जाओ नहीं ले रहे हो, पहले आप टेस्ट तो कर लो क्या वो आपको सही होगा भी नहीं कि होगा भी। सो यू शुड डू दैट, ठीक है। तो सैम्पल्स उसी क्वालिटी प्रोडक्ट्स को लीजिए, एंड देन दे उनके पास सैम्पल्स होते हैं, अपनी स्किन पे पहले ट्राई करें कि आपके लिए है भी कि नहीं है यार। जैसे बहुत सारे अच्छे जो सलून्स है, पार्लर्स है, दे वो आपके डाइज के लिए भी पैच टेस्ट करते हैं, बिकॉज आप रिएक्ट करोगे तो फिर वो क्या करेंगे। सो एवरीथिंग यू नीड टू बाय, उससे पहले आप टेस्ट कर ले। अगर आप बहुत सारे लोगों को डिटर्जेंट से प्रॉब्लम होती है, बट बर्तन तो धोने होते हैं यार, बर्तन तो है। सो आप ग्लव्स पहन सकते हो, आप हर चीज़ का एक तरीका होता है, हर चीज़ आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कोई भी इरिटेंट से प्रॉब्लम है, आप उसको वो कर ले, अपनी लाइफ को उसके मॉडिफाई कर ले। अगर आप डिटर्जेंट को एलर्जी को हो तो आप ग्लव्स पहन के काम कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है। बट इमेजिन अगर किसी को ज्वेलरी से एलर्जी है तो दैट्स अनदर प्रॉब्लम। वो अब आई डोंट नो हाउ आप उसका क्या करोगे। जैसे मेरी बहन है, वो गोल्ड नहीं पहनती है, आप वाइट गोल्ड पहन लो, ज़रूरी आप गोल्ड पहन लो, तो स्किन खराब होने से अच्छा है आप उसको मॉडिफाई कर लो, इरिटेंट से बचे, एंड दैट्स ऑल। आई डोंट थिंक सो देयर इज मच अबाउट इट। अगर आपको कुछ, लेट मी सी, अगर कोई कुछ पूछ रहा है अगेन आप क्वेश्चन पूछिए एंड आई टॉक अबाउट इट। प्लस इट्स संडे टुडे एंड आई ऑल्सो वांट टू हैव सम टाइम एंड आई डिडंट गेट माय टी ऑल्सो अभी तक, सो आई एम गोना गो, मैं अपनी चाय पीऊँगी अपनी अम्मा के साथ, एंड आई स्पेंड टाइम विद देम, ठीक है। यू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, ठीक है। एंड अगर कुछ और पूछना है तो प्लीज़ अगेन राइट टू मी एंड आई टॉक अबाउट इट, ठीक है। एंड मैं बहुत ट्राई करती हूँ उर्दू में बात करने के लिए, ये बात नहीं है कि मुझे उर्दू नहीं आती है, बात ये है कि मैं पठान भी हूँ, सो मेरी बहुत, आपको पता है हमारी उर्दू कैसी होती है, तो मैं ट्राई करती हूँ उर्दू में बात करने की, पर एंड ऑफ द डे मैं हूँ पठान, ठीक है। तो बस थोड़ा बहुत उर्दू में प्रॉब्लम हो जाती है और कुछ भी नहीं है, बट मैं 100% ट्राई करती हूँ कि आपसे उर्दू में ही बात करूँ, एंड आई ट्राई माई बेस्ट, ठीक है। I hope to see you again.
हैव अ गुड संडे। अल्लाह हाफिज़।